Guys, welcome to my channel Rekha Datta English Classes. So today I have brought a very important topic of grammar, that is called conditional sentences. Conditional sentences are very confusing. When you want to express yourself in English, you find it very difficult to speak in conditional sentences because most of the people are they get very confused whenever they want to use conditional sentence. They get really perplexed, and that is why they somehow manage to speak in different sentence structure instead of using conditional sentences. So today I'm going to talk about the conditional sentences, but before that let me tell you what is a conditional sentences. So condition means, as you know, it is means when you are putting a kind of condition, a kind of जिसको हिंदी में हम शर्त बोलते हैं. जब आप शर्त रखते हो किसी चीज के लिए, अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, अगर आप ऐसा कर चुके होते तो ऐसा होता. So in English how we do it, like if it rains I'll take my umbrella, if I get bored I prefer to watch TVs, if you come to my house I will help you. So these kind of sentences are sometimes very difficult to express. We really don't know how to speak in conditional sentences, how to use conditional sentences in our conversation. So today I'm going to talk about conditional sentences. Remember that there are 4 kind of conditional sentences which we are going to discuss today. First is zero conditional. Second one is conditional type 1, conditional type 2 and conditional type 3. And remember that in conditional sentences we have 2 clauses. कंडीशनल सेंटेंसेस में अक्सर 2 क्लॉजेस होते हैं. क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य. अब देखो कैसे, अगर मैंने बोला अगर तुम मेरे घर आते उस समय तो मैं तुम्हें मदद कर देता. अब यहाँ पे 2 भाग हो रहे हैं ना सेंटेंस के. अगर तुम मेरे घर आते तो मैं मदद कर देता, अगर बारिश होती तो मैं छाता लेके जाता, या अगर बारिश होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा. हिंदी में हम किसी भी तरह से बात कर सकते हैं. हम हिंदी में होगी, होते हैं, होता ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है एक मेन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं. मैं आपसे क्या कह रही थी कि 2 क्लॉजेस होते हैं. देयर आर 2 क्लॉजेस. One is main clause and other one is subordinate clause. In Hindi we say it मुख्य उपवाक्य and subordinate clause, that is आश्रित उपवाक्य. Remember that main clause actually it gives us the entire meaning and it is independent clause, but the subordinate clause always depends on main clause for its meaning. तो याद रखिए, जो मेन क्लॉज होता है वो आपको पूरी मीनिंग देता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है. और जो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ वाला सेंटेंस है, याद रखिए कि ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेस हम इफ से शुरू करते हैं और व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं. बाकी तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोवाइडेड दैट है, उसके बाद आपका इन केस है. तो ये सब अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है. तो हम अभी सिर्फ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मेन आपके इफ क्लॉज से शुरू होने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. So we are going to talk about if sentences, if conditional sentences, and in place of if sometimes we use when also. So remember that 2 clauses are there, and the clause which start with if clause, I mean with if conjunction, it is called subordinate clause. And then we have another clause which gives us full meaning, कि जो हमारा कंडीशन वाला सेंटेंस है वो इफ कंजंक्शन से शुरू होता है और उसके बाद एक मेन आपका सेंटेंस भी होता है जिसको मेन क्लॉज कहते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता. इंग्लिश में कैसे होगा? इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी I would help the poor. अब यहाँ पे देखिए,
इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी, ये वाला जो भाग है इफ के साथ शुरू हो रहा है, इफ कंजंक्शन के साथ शुरू हो रहा है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये अपनी मीनिंग तो खुद दे ही नहीं पाएगा। अगर मैं कहती हूँ कि इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी, तो उसके बाद जब तक मैं उसको मेन क्लॉज के साथ न जोड़ू कोई भी मीनिंग हमको नहीं मिला, वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग। सो द पोर्शन विच स्टार्ट विथ इफ क्लॉज, इफ कंजंक्शन, यू नो, if I had lots of money, this portion is called conditional clause, because we are putting a kind of condition. हम एक शर्त रख रहे हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता. And the second part, I would help the poor. ये वाला जो पर्सन है वो रिजल्ट दिखाता है, आउटकम दिखाता है. आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट. तो अब मेरे पास, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता. तो यहाँ पे याद रखिए कि जो आपका जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें हमेशा आपके दो क्लॉज रहेंगे. एक इफ से शुरू होगा, जो इफ क्लॉज से शुरू होगा, इफ की जगह व्हेन भी हो सकता है, तो उसको कंडीशनल कहते हैं, कंडीशन वाला क्लॉज. क्लॉज का मतलब उपवाक्य. एंड जो उधर वाला है, यानी जो आउटकम या रिजल्ट दिखाता है, उस भाग को हम मेन क्लॉज कहते हैं. अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूं. इफ आई गेट बोर्ड, आई प्ले वीडियो गेम्स. अब यहाँ पे इफ आई गेट बोर्ड, आई प्ले वीडियो गेम्स. अब यहाँ पे देखिए पहले वाला, अगर मैं बोर होती हूँ, इफ आई गेट बोर्ड, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल शर्त बता रहा है, अगर मैं बोर होती हूँ. आई प्ले वीडियो गेम्स एंड दिस पोर्शन इज शोइंग द रिजल्ट और द आउटकम, यानी बोर होने का रिजल्ट क्या है कि वीडियो गेम खेलती हूँ. इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का जीरो टाइप बताती हूँ. अब याद रखिए यहाँ के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, so first is 0, then 1, then 2, and then 3. So we'll talk about these 4 today. So first one is called zero conditional sentences. So zero condition, when do we use zero condition? Zero condition always tells about the fact. It tells about the facts, the truth. When we want to talk about some truth or some facts, we use zero conditional sentences. Okay, now let's see the structure. तो जब भी हम कभी कोई सत्य के बारे में बात करें या कोई ऐसा यूनिवर्सल जो सत्य है, यानी सर्वविदित सार्वभौमिक सत्य जो है, जब हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अब देखिए सार्वभौमिक सत्य क्या होता है. जैसे अगर मैंने बोला कि जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, तो ये सार्वभौमिक सत्य है ना. इसी को हम कंडीशनल सेंटेंस में बना के देखेंगे कि जैसे अगर मैंने बोला कि कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, तो वो भी तो एक सर्वविदित सार्वभौमिक सत्य है, यानी फैक्ट है. तो जीरो कंडीशनल में वी ऑलवेज टॉक अबाउट सम फैक्ट्स और सम ट्रूथ्स एंड विल सी द स्ट्रक्चर. सो पहले क्या है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं. तो पहले इफ कंजंक्शन, उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. और दूसरे वाले भाग में सिंपल प्रेजेंट. अब क्या हो गया, मतलब दोनों में हम, इफ क्लॉज में भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं और जो आउटकम दिखा रहा है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट फॉर बोथ ऑफ द क्लॉजेस. वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टू शो कंडीशन and we are using simple present only to show the outcome or the result. Okay, so how do we do it? And remember one more thing, that if we are using simple present in the beginning with the if clause, we need to put a comma after connecting with the main clause. अब आपको बता दें कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले रखते हैं, यानी इफ क्लॉज को अगर आप पहले रख रहे हैं सेंटेंस के शुरू में, तो एक कॉमा आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो आप आउटकम वाला सेंटेंस रखेंगे, जो वो भी सिंपल सेंटेंस में ही होगा. ओके, सो सिंपल, लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर अगेन. इफ कंजंक्शन, सिंपल प्रेजेंट, देन सिंपल प्रेजेंट. सो इफ दिस हैपन्स,
in simple in the if clause it shows if this happens that always happens. तो इसमें क्या बताया जाता है, अगर ये होता है तो यह जरूर होता है. Zero conditional sentences shows that both of the clauses are in the same tense. Both of the clauses are in the present tense. So another example I'm giving, if you heat the water at 100 degrees Celsius, it starts boiling. So first conditional sentence we have with if conjunction, if we heat the water at 100 degrees Celsius. Now second, the outcome is it starts boiling. So what we are doing, we are talking about the facts, we are talking about the truth, and it cannot be denied. The truth is universal. It is the fact that if we heat the water at 100 degrees Celsius, it starts boiling. Okay, so here we have the condition clause and then we have the outcome clause or the result clause. But remember that when you are using conditional clause in the beginning, you need to put a comma, and when you are using the result and the outcome in the beginning of a sentence, you don't need to put a comma. So we can exchange the sentence, you know, without changing the meaning too. How can we do it? We'll do it like this. So the water starts boiling if you heat the water at 100 degrees Celsius. So we can change it like this, interchange the sentences too, but meaning will not change. Okay, it will remain the same. तो जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों तरह से आप उसको बोल सकते हैं. कैसे कि अगर इफ क्लॉज को पहले भी रख सकते हैं, इफ क्लॉज को बाद में भी रख सकते हैं. पहले आप मेन क्लॉज को रख सकते हैं, बाद में इफ क्लॉज को, या इफ क्लॉज को पहले रखेंगे, मेन क्लॉज को बाद में. तो अगर आप इफ क्लॉज को पहले रखेंगे तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप मेन क्लॉज को पहले रखेंगे तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. एक और सेंटेंस में से मैं बोल रही हूं कि if you are a stranger, the dog barks at you. अब यहाँ पे दोनों सिंपल सेंटेंस मैंने यूज किया है. If you are a stranger, the dog barks at you. So if I'm using this first sentence, if you are a stranger, then comma, the dog barks at you. कुत्ता तुम पर भौंकता है. और अगर मैंने इसको चेंज किया, द डॉग बार्क्स एट यू इफ यू आर अ स्ट्रेंजर, देन वी डोंट नीड टू पुट अ कॉमा. तब हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी मेनी मोर सेंटेंसेस ऑफ दिस जीरो टाइप, यू नो. सो चलिए देखते हैं कि जीरो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस मैं ला रही हूँ. इफ इट रेन्स द प्लांट्स गेट्स इनफ वाटर. इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट बॉइल्स. If she eats too much junk food, she feels sick. When the sun sets, it gets dark. If you mix red and blue, you get purple. If he exercises regularly, he stays fit. When you press the button, it starts. If you drop the glass, it breaks. If plants gets enough sunlight, it grows. Now अभी आपने क्या देखा कि ये जो है सभी फैक्ट या सच्चाई या ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं. Sometimes we can use zero condition to talk about us and our nature, not for universe, but for us actually. Things that are true for us in certain conditions. So we can say, he starts breaking stuffs when he gets angry. So we are talking about a person condition that he starts breaking stuffs when he gets angry. Instead of when you can use if also. हम ये भी कह सकते हैं कि he starts breaking stuffs when he gets angry की जगह if he gets angry भी कह सकते हैं. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि if he gets angry, he starts breaking stuffs. दूसरा देखिए, if she gets bored, she plays chess. So if सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है, और जो आउटकम वाला सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है.
Tom doesn't talk to anybody when he feels sad. So here we are talking about condition of Tom. We are not talking about the condition of the universe or the fact or the truth. So Tom doesn't talk to anyone when he feels sad. I start vomiting when I eat junk food. So I'm talking about my condition. I start vomiting when I eat junk food. या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, if I eat junk food, I start vomiting. या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, I start vomiting whenever I eat junk food. Type 1 conditional sentences always talks about the real and possible situations. It means that if it happens, it will happen. अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा. यानी अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं अच्छा नंबर लाऊंगा. अगर आप मेरे घर आते हो तो मैं आपको दावत दूंगा. So let's see the structure and know about it in a clear way. So what we need to know that it always talks about the real situation and real possibilities. Okay? तो अगर प्रेजेंट में ऐसा होता है तो पास्ट फ्यूचर में ऐसा होगा. सो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इफ वाला क्लॉज है यानी जो कंडीशन दिखा रहा है दैट वुड बी इन प्रेजेंट टेंस. सो द इफ क्लॉज वुड बी इन प्रेजेंट टेंस एंड the main clause it would be in simple future tense. Okay, so if clause it is showing condition and main clause it is showing the outcome and the result, but it is in the future, simple future tense. So if I say let's see some of the sentences. So if I say, if I clear the serious examination, I'll throw a party. So here I am very much sure about clearing the examination. अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं सीरियस का एग्जाम पास कर लेती हूँ, if I clear the serious exam, अगर मैं सीरियस एग्जाम पास करती हूँ, I will throw a party. मैं एक पार्टी दूंगी. लेकिन जब हम बात करते हैं तो we are very sure about the possibility of this thing to happen. I mean, we know that it is going to happen, but we are not 100% sure, yet we know that it is coming on our way. अगर हम 100% श्योर नहीं भी होते तो एटलीस्ट इतना जानते हैं कि जो है ऐसा होने वाला है, कि ऐसा हो सकता है. यानी फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. कि ये एक बहुत ही क्लियर पॉसिबिलिटी दिखाता है कि इफ आई पास द एग्जाम आई विल थ्रो अ पार्टी. इफ आई क्लियर द सीरियस एग्जाम आई विल थ्रो अ पार्टी. If I get my appointment letter today, I will invite everybody to my home. So if I get my appointment letter today, if clause, it is in simple present tense, and I will invite you all in my house, it is in simple future. So remember, when we find that there is a lot of possibilities of happening something, we use this conditional sentence type 1. If I get selected in CDS, I will go for a training. CDS is a kind of exam. एक एग्जाम है जिसके बारे में बात हो रही है कि if I get selected in CDS, I will go for a training. If she gets the appointment letter, she will throw a party. If you do not perform well in the GDP, you can't be selected for this post. We are talking about some particular post that if you do not perform well in the GDP, you can't be selected for this post. So it is creating situation also. So if my younger brother, this is another example, if my younger brother does not perform well, my father might not pay his fees. So what we are doing here, instead of using will, we are using might. And we can also use, may not or might not or cannot or will not, anything we can use. So if my younger brother does not perform well, my father will not pay his fees or might not pay his fees
or cannot pay his fees. Cannot will not come here. So if you do this again, I will complain to the police. Maybe someone has done something wrong. तो आपने बोला if you do this again, I will complain to the principal or I will complain to the police. If you apologize to him, she might forgive you. If you apologize to him, she will forgive you. If you apologize to him, she may forgive you. She can forgive you. ठीक है? Now let's talk about conditional sentence part 2. I mean type 2. So here what we do, that there are two kinds of conditional sentences. One is showing total imagery. अब imagery जो situation ये दिखाती है, ये कैसे दिखाती है? इस तरह कि if you proposed me, अब सो पहला वाला इमेजरी सिचुएशन दिखाती है और दूसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाती है. इमेजरी सिचुएशन में क्या है कि भाई देखो, अब तो पॉसिबल तो है ही नहीं कि अगर ऐसा हो, यानी हो चुका है लेकिन अब कुछ करना नहीं है. एक इमेजरी सिचुएशन है कि अगर जो है, अगर एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने बोला कि अगर रानी मेरे साथ शादी करती तो बहुत खुश होती, तो ये एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन जो मैंने अपने दिमाग पे लगाया कि अगर वो मेरे से शादी करती तो बहुत खुश होती. लेकिन इसमें जो है कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं होता, यानी पॉसिबिलिटी उसकी जो है नहीं ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मतलब एक इमेजिनेशन में मैं ऐसा बोल रही हूँ. लेकिन जो दूसरा वाला सिचुएशन है वो इस तरह दिखाता है कि ये एक टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, अगर मैं जो है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता तो मैं ऐसा करता, या फिर अगर मैंने बोला मैं अगर एक चिड़िया होती तो मैं ऐसा करती, जबकि मैं कभी तो चिड़िया बन ही नहीं पाऊंगी और ना मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बन पाऊंगी. सो इट इज टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच इज प्रेजेंट. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर क्या है टाइप 2 में? जो कंडीशनल वाला भाग है, जो इफ क्लॉज दिखाता है, वो आपके सिंपल पास्ट में है, और जो आपका रिजल्ट वाला आउटकम वाला पोर्शन है, यानी जो मेन क्लॉज है, वो आपके सब्जेक्ट फिर वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाएगा. इफ शी इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम आई वुड रीच देयर. अब यहाँ पे देखिए क्या है, इफ शी इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, both are completed action, but it is a kind of imagination which we are saying that if she informed me on time, अगर वो मुझे टाइम पर इन्फॉर्म कर देती, I would be there, I would reach there. Okay. अब यहाँ पे जो एक दूसरा कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब और V1 हो. कभी कभी सब्जेक्ट के बाद जो आपका वुड आएगा, वुड के बाद कंडीशन भी दिखाया जा सकता है, यानी बी के फॉर्म भी आ सकता है. जैसे हमने बोला कि इफ शी मैरिड मी शी वुड बी हैप्पी. सो हियर वी आर शोइंग द कंडीशन ऑफ अ पर्सन, वुड बी हैप्पी. तो वुड, यहाँ पे वुड के बाद बी आ रहा है, बी यानी मेन वर्ब, जो बी का जो मेन वर्ब है वो क्या दिखा रहा है, वो कंडीशन दिखा रहा है, स्थिति दिखा रहा है कि वो खुश होती. इफ शी मैरिड मी शी वुड बी हैप्पी. सो दिस इज इट्स शोइंग इफ शी मैरिड मी. So the conditional sentence, it is in past tense, simple past tense, and the result or outcome sentence, it is saying, it is talking about would, subject would, and it's showing the condition. That is why we have used be with this, or sometimes it comes subject would and first form of the verb. Okay, now another sentence let's take. If I say, if I had lot of money I would help the poor. Now here say, see, अगर मैंने बोला if I had lot of money I would help the poor. अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे जो कंडीशनल वाला सेंटेंस में had कैसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो had है वो आपके पास परफेक्ट टेंस वाला had नहीं है, यहाँ पे had पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है. ओके, सो इफ I had money,
it is showing the position, it is not talking about the past perfect tense. Okay, had is talking about the position. have का जो past tense had हुआ, have position दिखाता है. If I have a car, if I have the money, same way if I had the money. So it is talking about the simple past showing position. Position दिखा रहा है. If I had the money, I would help the poor. So the structure is first, here we have past indefinite. So past indefinite can show the condition, past indefinite can show the action also. और दूसरा वाला जो है would वाला, would के बाद it can show the condition, would के बाद would be happy, it is showing the condition, or would marry her or would help her, it's showing the action. So it also can, both of the condition can show the actions. Okay, see another example. If I say, if I were there, if I were there, I would certainly solve the problem. So if I were there, so were it's showing his existence. Okay, if I were there, it is not showing any hypothetical sentences situation, it is showing the existence. अगर मैं वहां होता, if I were there, okay, if I were there, मैं अगर वहां होता, I would solve all the problem, मैं सारे problem को solve कर देता. Now let's see the hypothetical situation. अब देखिए hypothetical situation क्या होता कि अगर मैंने बोला if I were a bird, अगर मैं एक चिड़िया होती. अब यहाँ पे जो वर वाला है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है, लेकिन इसके पहले इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होती तो वो अलग दिखा रहा है ना. लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे. सो इफ आई वर अ बर्ड, इट इज शोइंग पास्ट, past tense, past simple past tense, and another thing is showing simple, future tense. That is I subject, then we will use would, and sometimes first form of the verb, and sometimes be के जो form है वो दिखाएंगे condition दिखाने के लिए. Sometimes the form of the be would come to show the situation or the condition. Say another example I'm showing that if I were you, I would never marry that girl. अब इसमें देखिए if I were you, I am not you. So it is a hypothetical situation. I am telling you that if I were you, if I were in place of you, so I am not you. So that is why it is totally hypothetical situation. If I were you, I would not marry that girl. मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे शादी नहीं करता. तो ये सिचुएशन तो कभी हो ही नहीं सकती ना, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल के कैटेगरी में रखा गया है. टाइप 2 दिखा रहा है. नाउ टाइप 2 में इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, जो कि विच इज अनलाइकली टू हैपन, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर के लिए हम कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं. इफ शी इन्फॉर्म्ड मी, आई कैन नहीं, if she informed me on time, I would reach there. If she proposed me, I would marry her. If I had a lot of money, I would help the poor. If I were there, I certainly would solve the issue. अब इसमें क्या है भाई, एक ऐसी सिचुएशन है कि इस स्थिति में काम असंभव नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये काल्पनिक है. वो काम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, लेकिन ये काम असंभव नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक काम है. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इफ शी इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, आई वुड रीच देयर. इफ शी इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, आई वुड रीच देयर. इफ शी प्रपोज्ड मी, आई वुड मैरी हर. If I had a lot of money, I would help the poor. If I were there, I certainly would solve the issue. If she informed me, I would reach there. नहीं, ये वाला नहीं, last वाला नहीं. If I had a lot of money, I would help the poor. अब इसमें क्या है देखो,
इसमें पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि अगर पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, पर रियलिटी ये है कि ना तो उसके पास पैसा है और ना ही वो मदद करेगा। अब इसी तरह का जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसके सेंटेंसेस देखिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है? वो ऐसी स्थिति है, ऐसा सिचुएशन है जो बिल्कुल ही असंभव है। ये काल्पनिक सिचुएशन है और ऐसा हम कर ही नहीं पाते। यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे, अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। इफ आई वर यू आई वुड नेवर मैरी दैट गर्ल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करती। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता मतलब तो मैं एजुकेशन सिस्टम को बदल देता, जबकि ये हो ही नहीं सकता, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं नहीं बन सकता। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, जबकि मैं तुम्हारी जगह तो हूं ही नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एंड शी वॉज द इफ शी वॉज द डॉटर ऑफ अ रिच पर्सन आई वुड प्रपोज हर। अब क्या है कि अगर वो एक बड़े अमीर आदमी की बेटी होती तो मैं उसको प्रपोज करता, लेकिन सिचुएशन ये है कि ना तो वो अमीर आदमी की बेटी है और ना मैं उसको प्रपोज कर पा सकता हूँ, और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसान की बेटी है। ठीक, नाउ इन टाइप 3 we talk about a imaginary situation and imaginative situation in the past, and it finished in the past and it result is also showing that it has also finished in the past. Only the regret of not doing that work or doing that work remains with us. So अब ये टाइप 3 क्या दिखा रहा है? टाइप 3 दिखा रहा है कि कोई भी चीज जो है वो पास्ट में जो है हुआ नहीं या हुआ, और उसका रिजल्ट जो है वो भी हो चुका है या हुआ नहीं है। जो भी हुआ काम दोनों पास्ट में खत्म हो चुके हैं, हम सिर्फ उसको रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, ऐसा अगर होता उस समय तो ऐसा हो जाता, है ना, ऐसी हम बात करते। अगर ये जो हो चुका होता तो वो भी हो जाता, ऐसा हम बात करें, लेकिन प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट में सारी चीजें खत्म हो जाती है, आउटकम भी पास्ट में हो जाती है। सिर्फ वन थिंग वी हैव, एक चीज जब हमारे साथ रहती है, दैट इज हमारे पास रिग्रेट रहता है, एक पछतावा रहता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, यानी ऐसा अगर कर चुके होते तो ऐसा भी हो चुका होता, ऐसा वाला सिचुएशन है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है आपका जो इफ क्लॉज के साथ है, दैट इज इफ एंड देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा यानी सब्जेक्ट के साथ, और जो दूसरा मेन क्लॉज है उसमें आपका आएगा सब्जेक्ट वुड हैव बीन और वुड हैव V3, दोनों आ सकता है। बीन तो कंडीशन दिखाएगा, लेकिन वुड हैव के साथ V3 होता तो एक्शन दिखाता है। अब फिर से देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया आपका इफ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट लगेगा, यानी इफ के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के पास पास्ट परफेक्ट लगाएंगे हम, और जो आपका आउटकम व रिजल्ट दिखाने वाला जो क्लॉज है, इसको चाहे आगे रखे चाहे बाद में, ये क्या दिखाएगा? सब्जेक्ट वुड हैव V3 या वुड हैव बीन के साथ आप नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सो बेसिकली इट मीन्स दैट इफ दिस हैड हैपेंड दैट वुड हैव हैपेंड, अगर ऐसा हो चुका होता तो ऐसा हो जाता। तो अब इसको जो है हिंदी में तो हम ऐसे ही बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सो अब ये कैसा होगा देखिए, इफ शी हैड मैरिड टू टॉम, अब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि इफ शी हैड मैरिड टू टॉम, कंडीशनल सेंटेंस याद रखिए, सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ शी हैड मैरिड टू टॉम, सेकेंड वाला जो आउटकम दिखा रहा है, शी वुड रिमेन हैप्पी एवर आफ्टर, ये एक्शन दिखा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इफ शी हैड मैरिड टू हिम या मैरिड टू टॉम, शी वुड हैव बीन हैप्पी। अब यह वुड हैव बीन जब हम लगा दे रहे हैं तो ये उसकी स्थिति दिखाई जा रही, कंडीशन, यानी वो खुश रहती।
ये भी सही बात है कि she would have remained happy ever after, या she would be happy, would have been happy. ये भी आपका जो है दोनों सही है. दोनों स्ट्रक्चर आपका जो है एक कंडीशन दिखा रहा है, एक एक्शन दिखा रहा है. Married to him, she would have remained happy ever after, or if she married to him, she would have been happy ever after. ये दोनों है स्ट्रक्चर है. I would have been a different person if she hadn't come into my life. Now we can change it into another way. We can change the order also. If she hadn't come to my life, I would have been a different person. Okay, so let's see many more examples of these the structure of this. Type 3 के sentences देखते हैं. If she had married to him on time, she would have remained happy. So here, if she had married to him on time, she would have remained happy. या फिर if she had married to him on time, she would have been happy. If he had continued with his drinking habit, he would have died. अब किसी व्यक्ति की बात करें कि अगर वो जो है ड्रिंकिंग हैबिट से कंटिन्यूड रहता तो वो खत्म हो जाता, मर जाता. If he had continued with his drinking habit, he would have died. I would have been a different person if she had not come into my life. अब इसको मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ कि if she hadn't come into my life, I would have been a different person. If he had contacted me on time, I would have given the opportunity to work with me. If he had contacted me on time, I would have given the opportunity to work with. So hope guys you like the video of today, and if you have any comment to share and if anything positive to say, please write in the comment box. I try to make my video bilingual so that those who understand Hindi and those who understand English both can take advantage of my video, both can get benefited watching my videos. So thank you so much for watching my videos.